اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے تعاون کیا ہے حاجی ٹریولز ٹنگا۔ حاجی ٹریولز، جو نام ہے اعتماد کا، عرصہ 29 سال سے آپ کی خدمت میں پیش حج عمرہ تمام ایئر لائنز کی سستی ترین ٹکٹوں کے لیے رابطہ کریں۔ ہیڈ آفس ہیلا روڈ، ڈنگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، صدق اللہ العظیم۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حمد و صلات کے بعد درود خاتم الانبیاء علیہ تحیۃ و ثنا، سرور انبیاء، قائد الانبیاء، فخر الانبیاء، اشرف الانبیاء، زینت بزم انبیاء، حسن کائنات، جان کائنات، فخر کائنات، باعث وجہ تخلیق کائنات، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، نور الہدیٰ، احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے بعد، حاضرین، سامعین، ناظرین، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آواز نیوز چینل کے پروگرام رحمت رمضان میں کچھ توبہ کے حوالہ سے آپ کے سامنے باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام سننے والوں کو ان باتوں پہ اللہ عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آواز نیوز چینل اور ان کی پوری ٹیم کو اللہ تعالیٰ اس خیر پر جزائے خیر عطا فرمائے۔ رحمت رمضان کے حسین عنوان سے آپ مختلف علماء سے اور مختلف حضور کے ثناخانوں سے بیانات بھی سماعت کرتے رہے، اور نعت خوانی بھی آپ سماعت کرتے رہے۔ قراء حضرات قرآن کی تلاوت آپ کی سماعتوں کو قرآن سے معطر فرماتے رہے۔ آج کا جو ٹاپک جس کے حوالہ سے گفتگو کرنے کا مجھے حکم دیا گیا وہ توبہ کے حوالہ سے ہے۔ یہ ماہ مبارک ویسے ہی اس کی ہر گھڑی، ہر لمحہ بندہ مومن کے لیے باعث برکت ہوتا ہے، لیکن ایک خاص رات جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اس رات کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل و کرم بے پناہ بندے کو نصیب ہوتے ہیں، تو اس کی تلاش میں ان لمحوں کو تلاش کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بے پناہ محبت فرماتے ہیں، اور اسی محبت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی بخشش کے بے پناہ سامان میسر فرمائے ہیں۔ ان بے پناہ جو بخشش کے وسیلے ہیں ان میں سے ایک وسیلہ لیلۃ القدر کی رات بھی ہے۔ اللہ اتنا عظیم ہے کہ وہ کسی کی عبادت سے بڑھتا نہیں، وہ کسی کی نافرمانی سے کم نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے بندے کا انتظار کرتا ہے کہ کب بندہ لوٹ کے آئے، اور بندہ جب لوٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کی توبہ کو قبول بھی فرماتا ہے اور اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ بلکہ وہ صرف گناہوں کو معاف نہیں کرتا، وہ گناہوں کو نیکیوں پہ تبدیل کرنے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ میرا کریم رب اللہ جو ہے وہ اپنے بندے سے اتنی زیادہ محبت فرماتا ہے جس کا اشارہ حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ ایسے دیا تھا کہ ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا، لاکھ گناہ میرا مالک ویکھے پردے پامن والا۔ وہ اپنے بندے کے عیبوں کو چھپاتا بھی ہے، اور صرف چھپاتا نہیں، انہیں معاف بھی کرتا ہے۔ تو حضرات عزیز محتشم حاضرین و ناظرین، یہ اللہ رب العزت کا ہم سے محبت کا اظہار ہے کہ وہ ہماری چھوٹی سی خیر کو بھی خیر کثیر میں تبدیل فرما دیتا ہے، کیونکہ وہ بندے سے محبت فرماتا ہے، اور جب وہ محبت فرماتا ہے تو محبت میں اس نے ہمیں اپنا محبوب بنایا، اس محبوبیت میں اس نے عام ہر انسان کو اپنی محبت عامہ عطا فرمائی۔ پھر اس محبت عامہ کے بعد اپنی محبت خاص کا اعلان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ بے شک میں توبہ کرنے والوں
और पाकीज़गी और तहारत रखने वालों से मोहब्बत फरमाता हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा, हमदन कसीरन कसीरन कसीरा। हज़रत मुहतशम, यहाँ मैं एक मिसाल आपके सामने पेश करता हूँ। जैसे वालिदैन की औलाद होती है, किसी के 4 बेटे हैं, किसी के 5 बेटे हैं, किसी के 3 बेटे हैं, तो औलाद की सूरत में उनकी मोहब्बत हर एक से यकसां है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो नाफरमान हो जाते हैं, जो अपने रास्ते से भटक जाते हैं, लेकिन उनकी मोहब्बत वालिदैन की जो होती है उसमें कमी नहीं आती। अब वालिदैन उनके लिए दुआएं भी करते हैं, अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा के इल्तिजाएं भी करते हैं कि अल्लाह हमारी औलाद को राह रास्त पे ला। जब वो राह रास्त पे वापस लौटते हैं, बजाय कि वो भटक गया था, बहक गया था, लेकिन इसके बावजूद वो इंतजार भी करते हैं, वो दुआएं भी करते हैं कब उनका बेटा वापस आए। और जब वो नाफरमान वापस लौटता है तो वालिदैन जब उसे देखते हैं कि अब ये फर्मा बरदार हो चुका है, अब ये अताअत करने लगा है, तो उनकी मोहब्बत पहले से भी ज्यादा उसके साथ बढ़ जाती है। यही मामला अल्लाह और बंदे का है कि जब बंदा भूल जाता है तो अल्लाह उसका इंतजार करते हैं, और जब बंदा लौटता है तो वो इतने करीम है, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। तो हज़रत मुहतशम, इस माह मुबारक में ये जो लैलतुल कद्र की रात अल्लाह ने रखी है, ये अपनी रहमतों और फजलों को बांटने की रात है। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। जब अल्लाह ताला ने शैतान से कहा कि मेरी बारगाह से निकल जा, तो शैतान जब निकल रहा था तो इख्तियार देने वाला अल्लाह था, उस शैतान को मोहलत देने वाला अल्लाह था, उसकी नाफरमानी को बर्दाश्त करके उससे ताकत देने वाला अल्लाह था। जब उसे ताकत और इख्तियार दे के अल्लाह ने फरमाया कि निकल जा तू मेरी बारगाह से, अल्लाह चाहता तो उसे नेस्तो नाबूद फरमा सकता था, अल्लाह चाहता तो उसी वक्त उसे खत्म कर सकता था, लेकिन उसने उसे मोहलत दी कि जा निकल जा, तू चला जा। जब वो निकला तो उसने अल्लाह से अर्ज की कि जब तक तेरे बंदे के अंदर रूह बाकी रहेगी, मैं उस वक्त तक तेरे बंदे को तेरे रास्ते से हटाता रहूंगा, उसे भटकाता रहूंगा, उसको तेरे रास्ते से हटाने की पूरी कोशिश करूंगा। जब ये जुमले शैतान ने कहे थे तो मेरे करीम ने अपने करम की इंतहा को बयान करते हुए, मेरे रहीम ने अपनी रहमत की इंतहा को बयान करते हुए इरशाद फरमाया, जा चला जा, तू भटकाने की कोशिश करना, मैं भी वादा करता हूं जब तक मेरे बंदे के जिस्म में रूह बाकी रहेगी और जब तक उसके मौत वक्त करीब आएगा, उस लम्हे तक मैं अपने बंदे का इंतजार करूंगा। इधर से बंदा आके तौबा करेगा, मैं उसके गुनाहों को माफ कर दूंगा। कितना करीम है वो। और एक सहाबी जो हुजूर आका नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए और आके अर्ज किया, आका बताइए क्या मेरा खुदा मेरे गुनाह माफ फरमाएगा? तो हुजूर फरमाते हैं, उसके अलावा कौन है जो अपने बंदे के गुनाहों को माफ फरमाएगा, कौन है जो दरगुजर फरमाएगा? जब ये जुमले उस सहाबी ने सुने, फरमाया अल्लाह के अलावा कौन है जो अपने बंदे के गुनाहों को माफ फरमाता है? वो थोड़ा सा नौजवान वापस चला, वापस फिर मुड़ा और आके अर्ज करता है, आका बताइए तो सही, हमें ये तो पता चला कि अल्लाह गुनाह माफ फरमाएगा, लेकिन जिस वक्त मैं गुनाह कर रहा था क्या मेरा खुदा मुझे देख रहा था? अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, उसके अलावा कौन है जो इतनी बड़ी बसारत रखने वाला हो? वो जैसे रोशनियों में देखता है ऐसे ही तारीकियों में देखता है, जैसे वो जाहिर में देखता है ऐसे ही बातन में देखता है, और उसी की शान है इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, कि वही है जो देखते हुए अपने बंदों को गुनाह को माफ फरमा देता है। जब ये जुमला उस सहाबी ने सुना तो उसके ईमान की महराज इतनी बुलंद हो गई कि उसकी रूह कब्ज़े अनसरी से परवाज कर गई। हजरत मुहतशम, ये जुमला काबिल गौर है। हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, आपसे किसी ने पूछा कि क्या अल्लाह तौबा कबूल फरमाएगा? तो ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर कबूल न करता तो बंदे को तौफीक ही ना देता। उसका तौफीक देना इस बात की दलील है कि वो बंदे का इंतजार कर रहा है, और जब बंदा वापस लौटता है तो मेरा करीम अपने करम से, अपने फजल से अपने बंदों के गुनाहों को माफ फरमा देता है, क्योंकि वो हमेशा से मामला अपने बंदे से अदल का नहीं फजल का फरमाता है, और जब वो फजल का मामला फरमाता है इसी का इजहार करते हुए हजरत मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, हजरत मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि अदल करें ता थर थर कंबन, उचियां शाना वाले, फजल करें ता बख्शे जासन, मैं वर्गे मुंह काले, और फजल तेरे नाल लोहे तर दे, संग फटियां नाल जड़ के, कुत्ते जन्नत जान मोहम्मद, संग सच्चियां दे रल के। वो जिसे अपनी बारगाह में तौबा की तौफीक देता है, तो वो तौफीक देना इस बात की दलील है
کہ अल्लाह उस बंदे को माफ फरमाना चाहता है। तो हज़रात अज़ीम मोहतरम अहद कीजिए कि अगर ये लम्हे हमें नसीब हो गए, वो घड़ियां और वो वक़्त अगर हमें मिल गया, तो हम अल्लाह के हुज़ूर सच्ची तौबा करेंगे, इस यकीन के साथ कि अल्लाह अपने बंदे के गुनाहों को माफ फरमाता है और अल्लाह अपने बंदे पे अपनी रहमतों की रहमतें नाज़िल फरमाता है और अपने बंदे पे अपना करम फरमाता है। एक हदीस के अंदर ये जुमले मौजूद हैं, जब सुबह क़यामत को एक शख्स अल्लाह के हुज़ूर आएगा और वो शख्स जब अल्लाह के हुज़ूर हाज़िर होगा तो अल्लाह उस बंदे से पूछेगा, ऐ मेरे बंदे बता तूने फलां गुनाह किया था। वो बंदा अर्ज़ करेगा या अल्लाह किया था। तूने फलां गुनाह किया था, या अल्लाह मैंने किया था। अब अल्लाह फरमाएगा मैंने दुनिया में तेरे गुनाहों को छुपा के नहीं रखा। तो वो बेसाख्ता कहेगा अल्लाह बेशक तूने मुझे इज्जत अता की थी, मेरे गुनाहों के बावजूद तूने मुझे मकाम और मर्तबा दिए रखा। अल्लाह तू बड़ा बेनियाज है, तूने मेरे गुनाहों को तूने छुपा के रखा था। पता सब सरदार नु कीतियां दा पर्दे ऐबां ते पाई नहीं भला होगी, इसलिए उसे सत्तारुल अयूब कहते हैं, गफारुल ज़ुनूब कहते हैं कि वो ऐबों को छुपाने वाला भी है, वो गुनाहों को माफ करने वाला भी है। हजरत अबू बकर ये उसी की शान है कि वो सत्तार भी है, वो गफ्फार भी है। कहार होने के बावजूद, जब्बार होने के बावजूद ये सिफ़तें मेरे खुदा की हैं, लेकिन वो मामला अपने बंदे से हमेशा सत्तारी और गफ्फारी का करता है। मेरे रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब अल्लाह बंदे से पूछेगा कि तूने फलां गुनाह किया कि नहीं, तो वो बंदा अर्ज करेगा या अल्लाह मैंने किया। जब इकरार जुर्म कर लेगा तो मेरा रब फरमाएगा है मेरे बंदे मैंने इतने ऐबों के बावजूद जब तुझे दुनिया में इज्जत दे रखी थी, तेरा मकाम तेरा मर्तबा बहाल था, मैंने तेरे गुनाहों को छुपा के रखा था। आज मैं नहीं चाहता कि तेरी वो इज्जत मिट जाए, तेरा वो मकाम मिट जाए। जा मेरे फजल से जन्नत में दाखिल हो जा। और जाते हुए वो कह रहा होगा जे वेखा मैं अमला बल्ले, कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे वेखा मैं रहमत तेरी बल्ले बल्ले बल्ले। हजरत अज़ीम मोहतरम लैलतुल कद्र की रात वो अजीम रात है जिस रात को सखी खुद पुकार पुकार के पुकार रहा होता है, आओ मुझसे ले लो। है कोई गुनाहों की माफी मांगने वाला तो मुझसे मांग लो, है कोई रिज़्क मांगने वाला तो मांग लो, है कोई तंग दस्त तो आ जाओ, है कोई बेऔलाद तो आ जाओ। जब सखी देने के लिए पुकार रहा हो तो महरूम रह जाएगा वो बंदा, अपनी शकावत की तरफ चला जाएगा वो बंदा जो उसके बुलाने पे हाजिर ना हो। तो मैं आवाज न्यूज चैनल के इस प्लेटफॉर्म से आपको ये सदा देना चाहता हूँ कि इस रात को जाया न कीजिएगा। इस रात को अल्लाह के हुज़ूर सजदा रेज़ होकर पिछले गुनाहों की माफी मांगिएगा। वैसे ये पूरा महीना ही बरकतों वाला है, ये रहमतों वाला है, ये फजलों वाला है कि इसकी हर रात को 70,000 फरिश्ते बंदे मोमिन के लिए दुआ करते हैं। अब जब फरिश्ते भी दुआ कर रहे हूँ और मलाइका जमीन की तरफ आ रहे हूँ और रब अपने बंदे को पुकार रहा हो, तो जो महरूम रह जाए वो अपनी कमी और कजी की वजह से रह जाएगा, वरना अल्लाह की अता, अल्लाह का फजल तो बंदे को ढांपने के लिए तैयार होता है। तो हजरत अज़ीम मोहतरम जब आप लैलतुल कद्र की मुकद्दस सातों को पाइएगा और जब आपको ये सातें नसीब हों, ये घड़ियां नसीब हों, तो आवाज न्यूज चैनल के इस रहमत रमजान प्रोग्राम को हमेशा याद कीजिएगा और हमेशा याद करके इनके लिए दुआओं का तोहफा जरूर भेजिएगा। अल्लाह इस इदारे को और इस इदारे के हर फर्द को अपने फजल व करम से माला माल फरमाए। तौबा एक ऐसा तोहफा है जो बंदे को रब के करीब कर देता है, जो बंदे को अल्लाह की मोहब्बत का हकदार बना देता है। तो आइए इरादा करें कि अल्लाह हमें ऐसी तौबा की तौफीक अता फरमाना कि जिस तौबा के बाद मैं गुनाह की तरफ ना जाऊं। रहमत रमदान प्रोग्राम से हम अल्लाह की रहमत के तलबगार हैं, तो अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी व नासिर हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।